Hello everyone. I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing very important topic that is Cannizzaro reaction. तो start करते हैं. सबसे पहले Cannizzaro reaction होता क्या है? Cannizzaro reaction एक kind of disproportionation reaction है which is given by aldehydes having no alpha hydrogen. So it is a kind of disproportionation reaction which is given by aldehydes having zero alpha hydrogen. Having zero alpha hydrogen. So there are some molecules like HCHO when undergoes disproportionation reaction, which is an aldehyde, forms CH3OH plus HCOO negative. Okay. Similarly, benzaldehyde in the presence of NaOH base, it forms BHCH2OH, which is benzyl alcohol plus BHCOO negative. Or CH3 whole thrice CCHO when reacts with NaOH forms CH3 whole thrice CH2OH plus CH3 whole thrice C double O negative. ओके, तो इस तरीके से अपन और भी कोई ग्रुप ले सकते हैं, मतलब जहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो एब्सेंट हो, कोई भी आप एक साइक्लिक रिंग ले लो. कोई भी आप एक साइक्लिक रिंग यहाँ पे ले सकते हो. जैसे in the presence of NaOH it forms okay. तो हम देख रहे हैं एक हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन रहा है, रिड्यूस होके जो एल्कोहल बन रहा है और ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है हमारा फॉर्मेट आयन रेस्पेक्टिव, जो फॉर्मेट आयन है वो सभी में बन जा रहा है. ठीक. तो इस तरीके से दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन. नाउ लेट अस कम टू इट्स मैकेनिज्म. ओके. द this is the we will take the simplest aldehyde which undergoes Cannizzaro reaction, that is formaldehyde. हमने ये लिया formaldehyde in the presence of OH negative. What OH negative will do? It will attack on this carbon. This forms CO negative OH H H. ठीक है. अभी होगा क्या? Again next HCHO molecule comes and hydride ion transfer takes place. Okay. This H negative. So this is the rate determining step, RDS, in which hydride ion transfer will take place. And this will give you CH H O negative OH. यहाँ से H हाइड्राइड आयन निकला, ये बन गया डबल बॉन्ड OH प्लस CH H H O negative. And this in the presence of NaOH, तो यहाँ पे C double bond O negative.
say double bond more negative plus CH3OH is formed over here, which is the final product. So काफी सिंपल ये मैकेनिज्म। ये रिएक्शन कब होती है? ये रिएक्शन हमारी कब होती है? जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज लो। तो इसमें हम दो मैकेनिज्म लिख सकते हैं। जब कंसंट्रेशन बेस की लो हो तो ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसलिए मैं इसको अरेंज करके नीचे लिख दे रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिटरमाइन करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सपोज दिस इज द इंटरमीडिएट आई, इसको अपन आई नाम दे देते हैं। दिस इज द इंटरमीडिएट आई है विद वन नेगेटिव चार्ज। ओके, रेट कांस्टेंट के इनटू में जो है आपका HCHO का कंसेंट। तो अपना रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन ही आएगा, रेज टू पावर वन। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेप। तो इस रिएक्शन के लिए अगर अपन स्टेप वन के लिए, दिस वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेप वन, राइटिंग फ्रॉम स्टेप वन, दिस वी आर रिटर्न फ्रॉम स्टेप टू। ओके, इसको नाम दे देते हैं स्टेप टू। इधर ये स्टेप वन। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू HCHO का कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCHO कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव। तो यहाँ से जो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू HCHO का होल स्क्वायर इनटू में OH नेगेटिव। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस reaction follows third order kinetics. The reaction is third order and bimolecular reaction, okay, in which the rate of the reaction is 2 with respect to HCHO, and with respect to OH negative, with respect to hydroxyl ion, the rate of the reaction is 1. With respect to hydroxyl ion, the rate of the reaction, the order of the reaction is 1. So order of the reaction is 1 with respect to hydroxyl ion, and with respect to formaldehyde, order of the reaction is। तो ये आपका हो गया, इसका मैकेनिज्म जो है ये हो गया। सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई। ठीक है, कंसंट्रेशन हमने बेस की क्या कर दी है, हाई कर दी है। तो क्या होगा, तो सेम ही फॉलो होगा। पहले तो क्रॉस कैनिजारों पे अपन जाएंगे, अभी पहले इसको देखते हैं। if concentration of base is high, HCHO है आपका, ये OH नेगेटिव के साथ अटैक करेगा। ठीक है, दिस विल गिव यू COH H OH O नेगेटिव। ओके, अभी यहाँ पे क्या आता है, वापस से आपका बेस आता है OH नेगेटिव, सेकंड स्टेप। दीज आर रिवर्सिबल स्टेप। तो यहाँ पे वापस से आपका ये जो है OH नेगेटिव आता है, एंड दिस फॉर्म्स CH O नेगेटिव O नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन बल्कि और ज्यादा आसान हो जाता है। हाइड्राइड ट्रांसफर जो होता है जब ये फॉर्म होगा, अभी यहाँ पे दिस इंटरमीडिएट react with HCHO, C double bond O, H and H. The hydride transfer will take place, and this will give you C H H H
O negative plus H C double bond O negative. Okay. Again, in the presence of base, तो इस स्टेप के लिए जो कांस्टेंट होगा अपन को इसको स्टेप 1 नाम दे देते हैं. स्टेप 1, स्टेप 2 and this is step 3 in which hydride ion transfer is taking place. ठीक है, तो ये दोबारा आगे फर्दर ये रिएक्ट नहीं करेगा, यहीं तक है. ठीक है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस और इस स्टेप का नाम है स्टेप 3 और ये आपको क्या होगा, रेट डिटरमिनेशन स्टेप. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो है रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लेते हैं फ्रॉम दी स्टेप 3 का यूज करके. रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ जाएगा के इंटू में इंटरमीडिएट आई के ऊपर जिसके ऊपर I-2 चार्ज है. ठीक है, इंटू में HCHO का कंसेप्ट. अब यहां से हम के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ I-2 divided by concentration of I negative divided by hydroxyl ion concentration. Next to this is K equilibrium 1 is concentration of I negative divided by HCHO का concentration into में hydroxyl ion concentration. So equating equation 1, equation 2 and equation 3, finally what you will get is rate of reaction is equal to K into में HCHO की concentration का और स्क्वायर OH नेगेटिव concentration is to पॉइंट. ठीक है, तो आप यहाँ से I नेगेटिव की वैल्यू निकाल लोगे K इक्विलिब्रियम 1 into HCHO into OH नेगेटिव, फिर उसको वहां पुट कर दोगे तो I-2 की वैल्यू आ जाएगी K इक्विलिब्रियम 1 into K इक्विलिब्रियम 2 into HCHO into OH नेगेटिव का होल स्क्वायर. तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी दिस. Rate of reaction is equal to K. So rate of reaction is fourth order kinetic. Fourth order kinetic. Okay, so it is bimolecular and fourth order kinetics with respect to the this when the concentration of base is high. When the concentration of base is high. तो ये अपना हो गया ये. अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो. ठीक है, तो हमें कैनिजारो समझ में आ गई. कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो का मैकेनिज्म समझ में. अब कैनिजारो का मैकेनिज्म जो है वो क्रॉस कैनिजारो को समझने से पहले जरूरी है. ठीक है, क्रॉस कैनिजारो को समझने से पहले कैनिजारो का मैकेनिज्म समझना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पे दो जो है रिएक्टेंट्स होंगे. तो OH नेगेटिव पहले किस पे अटैक करेगा वो ये डिसाइड करेगा कि वो फॉर्मिंग आयन. जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव ने पहले जिसपे भी अटैक किया वो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है. तो जिसकी भी रिएक्टिविटी क्रॉस कैनिजारो में हमें हाई होगी, जिसपे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी वो होगा आपका क्या, वो आपको जो है एसिड देगा. ठीक है, और जिसकी रिएक्टिविटी लो होगी वो आपको क्या देगा, एल्कोहल देगा. इस तरीके से हम प्रोसीड करें. सो अगेन अपन क्रॉस कैनिजारो स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि जो है अगर अपन यहाँ पे HCHO था हमारे पास, उसकी जगह अगर अपन एक हाइड्रोजन की जगह एक अगर ड्यूटेरियम ले लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा. और जो रिएक्शन हो रही है आपकी NaOH की प्रेजेंस में ही हो रही है. NaOH की प्रेजेंस में ही हो रही है. So what will be the products formed over here?
तो अगर अपन इसमें मैकेनिज्म से ही देखेंगे इसको, तो C डबल बॉन्ड और D, और यहाँ H है, यहाँ आप करवा दो OH नेगेटिव का अटैक। ठीक, आपने OH नेगेटिव का अटैक कराया, ये आपका क्या बनाएगा, CH3 O नेगेटिव, एंड यहाँ बन जाएगा OH। फर्दर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो वापिस से HCHO के साथ अटैक करेगा, विल अटैक ऑन HCHO। तो अभी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होना है, तो जो CD बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और CH बॉन्ड वीक है, तो यही बॉन्ड टूटेगा, and this will give you CH3OH finally plus CD DC double bond O negative. So these are the products formed over here. D C double bond O negative plus CH3OH. अच्छा, क्या हो अगर अपन ने HCH लिया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हो रही है, बस आपने जो मीडियम है ना वो ड्यूटेरियम का ले लिया, D2O ले लिया, तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई आयन नहीं आता, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, द प्रोडक्ट्स फॉर्म विल बी HC नेगेटिव Na पॉजिटिव, HC नेगेटिव प्लस CH3OH, सेम प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, देयर विल बी नो ऑर्गन। अच्छा, अगर क्या हो अगर हम D2C डबल बॉन्ड O ले, ठीक है, D2CO अगर अपन ले तो क्या होगा, in the presence of NaOH what will be the products form। okay, तो अगर आप इसमें अगेन देखोगे तो DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस में जो आपका बनेगा CD3OH, ये आपका CD3, this will be formed। okay, let us have a look at क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हमारे पास एक तो होगा आपका रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसा रिएक्शन। अभी देखो इसके अंदर क्या करेंगे, HCHO ले लेते हैं एंड PHCHO ले लेते हैं। तो आपके पास में एक तो अरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और एक आपका जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अभी एलिफेटिक और अरोमेटिक में से मोर रिएक्टिव कौन, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, दे आर डेफिनेटली मोर रिएक्टिव, यानी HCHO जो है आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट आयन एंड PHCH2OH, ये आपका यहाँ पे बने। अभी अगर अपन बात करें इसमें, इस रिएक्शन में, तो एक आपका HCHO है, एक PHCHO है, बेसिकली एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का जो है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे OH नेगेटिव जो है सबसे पहले जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उस पे जाके अटैक करेगा, एंड दिस विल फॉर्म C डबल बॉन्ड ऑफ OH H। then what will happen is the hydride ion transfer with BHCHO, there will be a hydride ion transfer, and this will be the rate determining step of the reaction. This will give you C double bond O OH H, and along with PH CH2
O negative. Okay. And this will give you HC double O negative plus PnCH2 OH. ठीक है, तो एसिड है, अपना H प्लस यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन होगी क्रॉस कैनिजारों में। तो हर रिएक्शन में हमें यही देखना है क्रॉस कैनिजारों में कि मोर रिएक्टिव कौन है या फिर लेस रिएक्टिव जो है वो कौन है। जो मोर रिएक्टिव है वो आपका जो है एसिड फॉर्म करेगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो आपका अल्कोहल फॉर्म करेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और बस यही चीज याद रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड सॉल्ट एंड लेस रिएक्टिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दीस प्रॉब्लम्स। CHO प्लस बेंजल्डिहाइड प्लस पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो इसके अंदर जो बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे जो है प्लस आई लग रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद द हाइपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पे नो इफेक्ट। तो डेफिनेटली जो बेंजल्डिहाइड है वो आपका मोर रिएक्टिव है, और ये आपका लेस रिएक्टिव होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल नेगेटिव प्लस CH2OH। नेक्स्ट टू दिस इज, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का माइनस आई लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, और ये रिलीजिंग इफेक्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। अगेन दिस विल बी मोर रिएक्टिव एंड दिस विल बी लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट टू दिस, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई और माइनस एम लगेगा, क्लोरीन का माइनस आई लगेगा। ठीक है, तो बोथ माइनस आई एंड माइनस एम, तो जो विड्रॉइंग होगा मोर रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, नाइट्रो वाला। तो इसीलिए वो बना लेगा एसिड, और आपका क्लोराइड क्या बना लेगा, CH2OH। इधर ऑर्थो क्लोरो है। ठीक है, तो इसमें माइनस आई है और इधर भी माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई जो है डोमिनेटिंग होता है क्लोराइड्स के केस में। तो यहाँ अगर हम देखें सिंपली जो है, तो आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल ओ नेगेटिव एंड along with CH2OH। सी, इसके बाद है हमारा ये CHOM। ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल ओ नेगेटिव प्लस CH2OH। Next to this, we are having in the presence of OH negative. So this is also chlorine का minus आई है, जो कि greater है as compared to minus आई और OH। ठीक है, OH का प्लस एम जो है डोमिनेटिंग होगा, तो रिलीजिंग है रिएक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, और जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका सी डबल ओ नेगेटिव along with the formation of CH2OH। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन पैरा पे लगा है, पैरा पे जो है माइनस आई कम होगा, मेटा पे जो है माइनस आई ज्यादा होगा। तो विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिव, तो CHO Cl सॉरी। इसके बाद HCHO और CH3 ऑल्ट्राइज CCHO, तो तीन तीन जो है
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। जो रिलीजिंग इफेक्ट है रिएक्टिविटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगेन दिस विल फॉर्मेट आयन प्लस CH3 होल थ्राइस CCH2OH। इसके बाद फिनाइल CHO अरोमेटिक एल्डिहाइड है, और एक आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अरोमेटिक एल्डिहाइड जो है यहाँ पे जो तीन, यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप में तीनों रिलीजिंग है, और ये आपका विड्रॉइंग है, तो दिस विल फॉर्म PHC डबल ओ नेगेटिव प्लस CH3 होल थ्राइस CCOH। इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो है बेसिकली प्लस साइन इफेक्ट जो है थ्री मिथाइल ग्रुप्स का। ठीक है, हियर प्लस साइन इफेक्ट ऑफ थ्री मिथाइल ग्रुप्स इज डोमिनेटिंग। तो ये वाला एल्डिहाइड जो है आपका लेस रिएक्टिव होगा, और बेंजल्डिहाइड जो है आपका मोर रिएक्टिव, बीइंग अरोमेटिक एल्डिहाइड आल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। यहाँ पे जैसे HCHO और PHCHO लिया था, तो हमारा यहाँ पे जो है फॉर्मेट आयन प्लस PHCH2OH बना था, लेकिन यहाँ पे PHCHO गेट्स कन्वर्टेड इनटू जो आपका बेंजोएट आयन प्लस आपका CH3 होता है CH2OH। उस तरीके से बात कर लेते हैं कुछ अदर स्पेशल केसेस की इन द कैनिजारो रिएक्शन, या फिर कुछ और क्वेश्चंस के अंदर इससे कुछ हो जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप ले लो यहाँ पे CH3CHCHO CH3। सो दिस इज आइसोब्यूटाइलडिहाइड। ठीक है, अब इस आइसोब्यूटाइलडिहाइड की अगर हम रिएक्शन जो है कराते हैं, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन अगर हम कराते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है क्या, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, होना यहाँ पे एल्डोल चाहिए, बट ड्यू टू स्टेरिक रीजन जो है क्राउडिंग के कारण यहाँ पे जो है आपका कैनिजारो ही ये देगा, C नेगेटिव सी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ड्यू टू स्टेरिक रीजन से आपका क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन ये देता है। तो होना यहाँ पे एल्डोल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैनिजारो होगा। क्यों होगा, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। इसके अलावा जैसे CH3CHO ये कंपाउंड है, अगर आप इसके अंदर बेस डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है हमें लग रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाट इट डज इज it forms CH3 negative plus HCOOH, which is again CHX3 plus HCOO negative। तो यहाँ पे आपको रेस्पेक्टिव एसिड प्लस CHX3 मिल जाता है, ये आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद HCHO एंड PHCHO। इसके हमने लिए स्टार्टिंग में 2 मोल, इसका हमने लिया 1 मोल। होगा क्या, पहले तो क्रॉस कैनिजारो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बताओ क्या प्रोडक्ट। तो क्रॉस कैनिजारो होगा तो मोर रिएक्टिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एंड लेस रिएक्टिव फिनाइल का विथड्रॉइंग इफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो द लेस रिएक्टिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू जो है आपका रिलीजिंग इफेक्ट है। ठीक है, प्लस आर भी लगा रहा है, माइनस आई लगा, तो डोमिनेटिंग प्लस आर होगा।
तो यहाँ पे ये जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा PHCH2OH। ठीक है, HC डबल ओ नेगेटिव। अभी HC डबल ओ नेगेटिव का 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। फाइनली PHCH हो गया 0 और ये 1 मोल बचा। अब जब ये 1 मोल बचा तो अगेन आपस में हम ये रिएक्ट करेंगे HCHO प्लस HCHO, 0.5 मोल 0.5 मोल, and will form Hc double O negative plus CH3OH। तो यहाँ पे 0.5 मोल, ये 0.5 मोल, टोटल जो इसमें Hc डबल ओ नेगेटिव बना वो बना 1.5 मोल। और PHCH2OH 1 मोल और CH3OH 0.5 मोल। दिस इज द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CHO। हमने एक कंपाउंड लिया। तो यहाँ पे एक तो आपके पास में कीटोन है और एक आपके पास में एल्डिहाइड है। ठीक है, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पे कि CHO ग्रुप है आपके पास। ठीक है, एक से डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव जो अटैक करेगा किस पे, CHO पे। ठीक है, और ये आपका बनाएगा PH सी डबल बॉन्ड O CH O नेगेटिव OH। ठीक है, अब आपका होना है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा PHCOH COH O नेगेटिव। हाइड्राइड आयन यहाँ से ट्रांसफर होके इस कीटो ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस विल गिव यू O नेगेटिव और ये आपका डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, which will form PHCHOH C डबल बॉन्ड O। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। Ketones can only be reduced. Ketones can only be reduced in such reactions. एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लो ग्लिसरल्डिहाइड। अभी आपने इसके अंदर बेस डाला। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा CH2OH और C डबल O नेगेटिव। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। One part of this molecule is oxidized and one part of this molecule is reduced. One part of this molecule is reduced. Then अगर हम इसका इसका तो हम नहीं करा सकते, लेकिन जैसे अगर अपन ये मॉलिक्यूल CHO C डबल OH, इसका अगर अपन कराएं एल्डोल करने, तो सॉरी कैनिजारो अगर हम कराएं तो ये आपका one part of this is reduced and one part of this is oxidized. So this is oxalic acid will be formed. ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, नोन एज ग्लाइकोलिक एसिड। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास में CH3CHO है और यहाँ पे HCHO है एंड HCHO इज इन एक्सेस। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपने यहाँ पे बेस डाला है
तो यहाँ सबसे पहले होगा आपका क्या, एल्डोल। तो ये हमें देगा क्या, CH2, CH2OH, CH, CHO, CH2CHO। फर्दर हम एक और बार ये HCHO इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक और अल्फा हाइड्रोजन है। दिस विल फॉर्म CH2OH all twice CHCHO. Again, one more aldol condensation can occur. This can form CH2OH all thrice CHCHO. And further, it can react again with HCHO. So, यहाँ लास्ट में होगा कैनिजारो, और जब कैनिजारो होगा तो इस वाले एल्डिहाइड का होगा क्या, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड इस वाले एल्डिहाइड का आपका होगा ऑक्सीडेशन, एंड दिस विल गिव यू Hc double O negative plus CH2OH all four C, और इसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा, बीच में कार्बन है और चारों ओर चार क्या है, CH2OH, तो स्वास्तिक चिन्ह जैसा आपको नजर आएगा। ठीक है, सो दैट इज इट। अगर हम नहीं जा रहे पिछले कुछ स्टेप को देखें तो इसके अंदर जैसे एसिड प्लस एल्कोहल बन गया, अगर मुझे एस्टर बनाना हो, या एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछे कि एस्टर क्यों नहीं बन रहा है, हम दूसरा मॉलिक्यूल ले, CHO, आपने यहाँ पे भी क्रॉस कैनिजारो कराया हुआ OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ आपका बन गया क्या, CH2OH HC डबल O नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव। अगर आप इसको बेसिक मीडियम में ही रखेंगे तो जो है नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, आप एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड, this cyclic ester will be formed over here, so that's it। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर अपन ले, CHO, CHO, अगर हम इनका जो है क्रॉस कैनिजारो कर रहे हैं, क्रॉस कैनिजारो करवाएं तो ये बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसको फर्दर एसिडिक मीडियम से पास करें, then what will be formed over here is the, this will be formed over here, okay, this product will be formed, so that's all for the Cannizzaro reaction। Okay, the video till here, if you are till the end of this video, तो Cannizzaro reaction को काफी हमने यहाँ पे डिटेल में जो है पॉसिबल था जितना, उतना हमने डिस्कस किया है इन सभी स्लाइड्स में। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।
Suggestions and feedbacks are most welcome. If you have some suggestion or if you have something like this you have mistaken, we will rectify that. Okay. So thank you for watching the video. Have a great day.